Hello, dear students. How are you all? I hope all of you are fine and safe at your home. I am your mentor Shobna to teach you science. And in our last video lecture, we learnt about various uses of microbes and its household uses. So, in that uses, we saw that how fungi means yeast and bacteria are useful to us. In baking industries, they are so useful. Bacteria are also useful to make curd, and other commercial uses of microbes are also there. So in this video lecture, we would be learning that which commercial uses of microorganisms are there. So microorganisms are used for the large scale production of alcohol, wine and acetic acid, say vinegar. Okay? So microorganism है उनको कमर्शियली लार्ज स्केल पर अल्कोहल वाइन या एसिटिक एसिड जिनको आप विनेगर बोलते हो राइट, तो उनके प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है. यीस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन. For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juices, etc. बेसिकली जो फ्रूट्स है उनकी जो मोलासिस है ओके उनके फर्मेंटेशन से अल्कोहल प्रिपेयर किया जाता है, या फिर जो दूसरी नेचुरल शुगर्स है जो ग्रेन्स है जैसे कि बार्ले वीट या राइस, उन ग्रेन्स में बेसिक शुगर प्रेजेंट होती है, तो उनके कन्वर्जन से या फिर उनके ऊपर ये यीस्ट है उनका ग्रोथ बढ़ा के फर्मेंट करके भी हम अल्कोहल प्रोड्यूस कर सकते हैं. Well, it's a long time taking process and it makes that alcohol taste better, and for that various processes are performed. Okay, so these microorganisms are used on large scale for production of alcohol on a greater scale. Okay, to understand this process, you are given one activity where you need to take 500 ml beaker which is filled up to 3/4 with water. पानी से 3/4 भरा हुआ एक बीकर लेना है and dissolve 2 to 3 teaspoons of sugar in it. तो इस बीकर के अंदर आपको 2 से 3 टीस्पून शुगर ऐड करना है एंड ऐड हाफ अ स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन. आपने जो शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है उनमें हाफ टी स्पून यीस्ट पाउडर भी ऐड करना है एंड कीप इट कवर्ड इन वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 hours. ओके, अब इस सॉल्यूशन जिसमें आपने यीस्ट पाउडर ऐड किया है उसको 4 से 5 घंटे के लिए आपको एक वार्म प्लेस है वहाँ रखना है. उनसे क्या होगा, टेम्परेचर की वजह से जो फर्मेंटेशन रेट है वो बढ़ेगा. And now if you smell that solution, then you will get a smell of alcohol. This is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. And this process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation process, students. Okay? And it is used on large scale. But do you know that this fermentation process, this was discovered by scientists first time by Louis Pasteur. Okay, Louis Pasteur नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने फर्मेंटेशन प्रोसेस को 1857 में डिस्कवर किया था. तो बेसिकली क्या है ये फर्मेंटेशन प्रोसेस? जो शुगर सॉल्यूशन होता है वो शुगर चाहे आपने कैसे भी डिराइव की है, कोई ग्रेन से डिराइव की है या फ्रूट्स की जो नेचुरल शुगर है वो उनसे डिराइव की है और सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, बट मेन प्रोसेस जो है वो शुगर के सॉल्यूशन में यीस्ट पाउडर को ऐड करना है. व्हेन यू ऐड yeast powder to sugar solution, then what happens, fermentation process is there which converts sugar into alcohol, and this process is known as fermentation, and this prepares the alcohol. After that more processes are done on that beverage, but basically alcohol is prepared by this fermentation method.
So if you are asked what is fermentation, what you would say? You would say that fermentation is process of converting sugar into alcohol. Got it, students? Now next is medicinal use of microorganisms. What is medicinal use? मेडिकल फील्ड है, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अहम हिस्सा है. Okay, whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsule or injections such as of penicillin. आप कभी बीमार होते हो तो आप डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स है वो प्रेस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है. तो उनमें कैप्सूल होती है या इंजेक्शन होता है. तो उनमें बेसिकली क्या होता है, वो पेनिसिलिन होता है. द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बेसिकली पेनिसिलिन है वो कहाँ से बनाया जाता है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है. और ये वाली मेडिसिन क्या करती है, वो जो माइक्रोब्स है, डिजीज़ को कोज करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ख़त्म करता है. इट किल्स डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स. ओके, एंड दैट मेडिसिन इज नोन एज पेन किलर और kind of antibiotic which cures the disease. Okay, such medicines are called antibiotics. Okay, antibiotics means जो organisms है उनके अगेंस्ट फाइट करेगी और डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स को ख़त्म करेगी, ऐसी दवाई, तो वो क्या है, एंटीबायोटिक्स. These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. बेसिकली ऐसी दवाई जो है वो बैक्टीरिया और फंजाई के थ्रू प्रिपेयर की जाती है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है. देयर आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. ओके, so commonly known antibiotics hai which are made from fungi and bacteria, and these antibiotics are manufactured by growing specific microbes and they are used to cure variety of diseases. Okay, तो ये एंटीबायोटिक से प्रिपेयर किए जाते हैं. और यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन बॉक्स भी दिया है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक है वो किन्होंने फाइंड आउट किया था. So in 1929, Alexander Fleming was working on culture of disease-causing bacteria, and suddenly he found spores of little green mold in one of his culture plates. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this, the mold penicillin was prepared. ओके, तो जो फंजाई है उसकी वजह से कुछ बैक्टीरिया है उनका ग्रोथ स्टॉप हो गया और उन बैक्टीरिया को इस मोल्ड ने ऑलमोस्ट किल कर दिया. सो फाइनली ही केम टू अ कंक्लूजन दैट दिस कैन बी यूज्ड अगेंस्ट बैक्टीरिया. सो दिस इज हाउ दिस एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड. ओके स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि कुछ इन्वेंट कर रहे होते हैं और एक्सीडेंटली कुछ और इन्वेंट हो जाता है. Well, that too is boon most of the time. Okay, so sometimes accidentally some inventions are happened, but not all the time this occurs. Okay, because this research is done at deep level and it takes most of the years of life of particular scientist. Okay, कई सारे साइंटिस्ट अपनी पूरी लाइफ लगा देते हैं इन रिसर्च के पीछे. So it doesn't happen overnight. Okay, right now we are hoping to find to get a vaccine prepared by our researchers, right? इनकी वैक्सीन के लिए हम राह देख रहे हैं. यस, कोविड-19 कोरोना वायरस के लिए जो डिजीज़ है उनके लिए वैक्सीन जल्दी से जल्दी हमें मिल जाए, हम ऐसी आशा कर रहे हैं ना. वेल, न्यूज़ इज़ ऑल्सो सेइंग दैट that vaccine which was found and trial, it was on trial, that would be successful, that its trial was good, and that vaccine also prepared the T cells which kills that bacteria. Okay, so that memory cells were also developed because of the trial of that vaccine. Okay, so that trial was successful, but let us see that when it comes to market and it heals the corona patients. Okay, let's hope for good.
and move for next point in our chapter. सो एंटीबायोटिक्स ऐसे है जो इवन उनको मिक्स भी किया जाता है. दे आर मिक्स विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल. हियर चेक मीन्स टू प्रिवेंट. ओके, तो कुछ एंटीबायोटिक्स है वो लाइव स्टॉक है उनके फीड में. ओके, उनके लिए जो हम चारा यूज़ करते हैं एनिमल्स के लिए, उनमें पोल्ट्री के जो एनिमल्स हैं उनके लिए जो फीड यूज़ करते हैं उनमें मिला दिया जाता है ये एंटीबायोटिक्स, ताकि उनमें माइक्रोबियल इन्फेक्शन को हम रोक सकें. टू प्रिवेंट माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल. दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेस. प्लांट्स में भी डिजीजेस होते हैं, तो उन डिजीजेस को स्टॉप करने के लिए भी ये एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं. तो अब आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि ये माइक्रोब्स जो है हमारे लिए कितने यूज़फुल है. हमारी डेली लाइफ में हमें यूज़फुल है, मेडिसिनल यूज़ उनका बहुत सारे है, और कमर्शियली भी वो बहुत यूज़फुल है. ओके स्टूडेंट्स, so these microbes are friend to us. It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of qualified doctor. आपको पता चला कि ये माइक्रोब्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, तो आपने वो दवाई कभी भी खा ली जब भी मन किया खा ली, या फिर ऐसे ही मेडिकल से कोई दवाई लाई और कंज्यूम कर ली. सो इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस स्टूडेंट्स. You should not consume any particular medicine without prescription of doctor. Once doctor prescribes you, then that medicine is safe to take. Okay, otherwise it would create a bad impact on your health than the good impact. Okay, आपकी वो दवाई आपकी हेल्थ पे अच्छी असर करने से ज़्यादा वो बुरा असर डालेगी. ओके, सो डॉक्टर की एडवाइस पर ही कोई दवाई ले. If you take antibiotics when not needed or in wrong doses, it may make the drug less effective when you might need it in future. ऐसा ही पेन किलर्स के साथ होता है. तो पेन किलर में क्या होता है कि वो आपको कोई भी पेन हो रहा है तो क्विकली वो आपको उस दर्द से राहत दिलाता है. तो हमारी हैबिट हो जाती है कि थोड़ा ही छोटा मोटा दर्द हुआ और हमने पेन किलर ले ली. बट इट्स रियली अ रॉन्ग प्रैक्टिस. वाई? क्योंकि अगर आप इस द पेन किलर को या कोई और एंटीबायोटिक है उनको गलत डोज में, मतलब जितनी चाहिए उससे कम या ज़्यादा लेते हो, या फिर ज़रूरत नहीं है इतनी और आप ऑफन उसी दवाई को कंज्यूम करते रहते हो, तो इन फ्यूचर जब आपको उस दवाई की सच में ज़रूरत होगी आपकी बॉडी को, तब वो दवाई बिल्कुल असर नहीं करेगी. उसकी इफ़ेक्ट है आपकी बॉडी पर बहुत कम हो जाएगी. Also, antibiotic taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. अब ये तो बहुत बुरा होगा, है ना, कि अगर बिना ज़रूरत के आप ऐसी दवाई खाते रहेंगे तो आपकी बॉडी के जो गुड बैक्टीरियाज है, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, उनको भी ये दवाई खत्म कर देगी. ओके, एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कोज्ड बाय viruses. This is very important point student to be noted that antibiotics they are antibacterial. Okay, तो बैक्टीरिया से होने वाले जो डिजीजेस है उनमें ये काम आएगी. ओके, बट कोल्ड और फ्लू हुआ है तो आप एंटीबायोटिक यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज कोल्ड एंड फ्लू आर वायरल डिजीजेस. ओके, दीज आर वायरल इन्फेक्शंस, सो एंटीबायोटिक वुड नॉट वर्क. अब आपको क्वेश्चन होगा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही तो है, तो फिर हम कोल्ड और फ्लू के अगेंस्ट एंटीबायोटिक क्यों यूज़ नहीं कर सकते. तो उनका रीज़न ये है कि वायरसेस जो है उनकी और बैक्टीरिया है उनकी दोनों की बायोलॉजिकल प्रोसेसेस अलग होती है. ठीक है, उनका ग्रोथ का जो वे है वो भी अलग है. तो इस वजह से एक ही दवाई है वो हम दोनों के लिए यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है. नाउ वैक्सीन, आप सभी ने सुना ही होगा कि अभी कोरोना के लिए हमने वैक्सीन फाइंड आउट करने के लिए हमारे जो साइंटिस्ट है, जो भी रिसर्चर्स है, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस पर, है ना. पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी साइंटिस्ट है, जो भी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो सभी इस पर काम कर रहे हैं, है ना. तो वैक्सीन से तो अब हम सभी वाकिफ़ हैं. तो वैक्सीन बेसिकली क्यों देनी चाहिए, व्हाट इज़ वैक्सीन, वो कैसे काम करती है,
दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो बेसिकली वैक्सीन जो है वो वायरल डिजीजेस के लिए प्रिपेयर किया जाता है। मोस्टली वायरल डिजीजेस के लिए वैक्सीन है वो प्रोवाइड किया जाता है। बट वैक्सीन एक्चुअली है क्या, और वो बच्चों को क्यों दी जाती है या फिर बड़ों को भी क्यों दी जाती है? तो उनका रीज़न ये है कि वैक्सीन है अगर प्रोवाइड की जाए तो वो बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट करती है। इम्यूनिटी मीन्स अ पावर टू फाइट अगेंस्ट पर्टिकुलर फॉरेन बॉडीज। फॉरेन बॉडीज मीन्स योर वायरस और बैक्टीरिया, राइट। तो जो बाहर की ओर से जो बैक्टीरिया या वायरसेस आपकी बॉडी में एंटर करते हैं और कुछ डिजीजेस क्रिएट करते हैं, तो उनको स्टॉप करने के लिए, उनसे फाइट करने के लिए ये वैक्सीन आपकी बॉडी को दिलाई जाती है। सो वैक्सीन एक्चुअली एक मेडिकल प्रिपरेशन है विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम डेड माइक्रोब्स, ओके, डेड और वीक माइक्रोब्स। तो वैक्सीन अगर कोई वायरल इन्फेक्शन के लिए है तो वो कोई डेड वायरस या फिर वीक वायरस से प्रिपेयर किया जाएगा, और उनको बॉडी में इंजेक्ट करने से क्या करेंगे कि बॉडी जो है वो फर्स्ट टाइम जब उस पर्टिकुलर वायरस से इंट्रोड्यूस होगी तो वो लर्न करेगी कि हाउ टू फाइट अगेंस्ट दिस वायरस, एंड देन इट विल डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट टाइप ऑफ वायरस, ओके। फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना के लिए सपोज वैक्सीन मिली और वो बॉडी को इंट्रोड्यूस कराई गई, तो क्या करेंगे कि वो फर्स्ट टाइम किसी पर्टिकुलर ह्यूमन की बॉडी जो है उनमें वो वायरस इंट्रोड्यूस होगा, फिर बॉडी के जो इम्यून सेल्स, इम्यूनिटी सेल्स है जो पर्टिकुलर डिजीज से लड़ते हैं, तो वो सेल्स इन वायरसेस से लड़ना सीखेंगे और उनकी मेमोरी उस बॉडी में सेल्स में स्टोर करके रखेंगे, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो वायरस आए तो अब बॉडी को पता है कि कैसे उस पर्टिकुलर डिजीज से लड़ना है। समझ में आया? ओके, सो वैक्सीन वर्क्स इन दिस वे, ओके। So when disease carrying microbes enters our body, the body produces antibodies. Antibodies to fight the invader. Invader means your virus which has entered into your body. So the body also remembers how to fight the microbe if it enters again. अगर दोबारा से एंटर हुआ तो कैसे लड़ना है, तो वो इनसे लड़ना सीखते हैं, ठीक है। If dead or weakened microbes are introduced into healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. जो पहली बार ये वायरसेस बॉडी में इंट्रोड्यूस होते हैं, सो बॉडी उस टाइम पे लर्न करती है कि कैसे इन माइक्रोब्स के अगेंस्ट लड़ना है, ठीक है। एंड द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड। अब ये एंटीबॉडीज जिन्होंने रोग से, उस पर्टिकुलर डिजीज से लड़ा है, वो हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट रहते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब वही वायरस हमारी बॉडी में एंटर होता है तो क्या होगा, आवर बॉडी नोज हाउ टू फाइट अगेंस्ट दैट वायरस दिस टाइम, ओके। सो दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क्स, ओके। सेवरल डिजीजेस इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस, स्मॉलपॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। आपने देखा ही होगा कि जो छोटे बच्चे हैं, राइट, बोर्न बेबीज़ है, और दे आर ऑफ 1 month, 2 months, 1 week, 2 week, or children of 1 to 5 years age, they are provided with different types of vaccines for different diseases, okay. Vaccination card is there in which record of that particular child's vaccination program is there, that particular vaccine is given on दिस पर्टिकुलर टाइम, कि सपोज एक वैक्सीन दी गई है तो अब नेक्स्ट वैक्सीन कब देनी है, तो इनका डेट वाइज जो प्रोग्राम है वो उसमें नोट डाउन किया होता है, ओके। सो वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स आर देयर विच आर अवेलेबल इन private hospitals also, and in government hospitals or public health centers, okay, they are providing these vaccination programs, and you can learn more about this vaccination program by observing that vaccination card, okay. If you find time, you can see that vaccination card available in a house where a small baby is there, and you can learn that which particular type of vaccines are provided,
Okay, you can make a list of that particular vaccines which are provided to a child from its birth to age of 10 to 14 years. Okay, Edward Jenner discovered the vaccine for smallpox in 1798. वो फर्स्ट एवर वैक्सीन थी जो एडवर्ड जेनर ने फाइंड आउट की थी स्मॉल पॉक्स के लिए। ठीक है, तो इससे पहले वैक्सीन क्या है या कैसे काम करती है वो किसी को नहीं पता था। फर्स्ट टाइम वैक्सीन के बारे में जो भी रिसर्च है वो एडवर्ड जेनर ने किया था और स्मॉल पॉक्स डिजीज के लिए किया था। तो स्मॉल पॉक्स जो है वो वायरल इन्फेक्शन है और उनके लिए वैक्सीन फाइंड आउट की थी एडवर्ड जेनर ने। और स्मॉल पॉक्स के जो भी सिम्टम्स थे वो भी इतने सीवियर हुआ करते थे कि अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये हुआ तो कई ऐसे पेशेंट्स थे पुराने कि जिनको जब ये स्मॉल पॉक्स हुआ था तो उन्होंने अपनी आंखें तक खो दी थी। ओके, स्मॉल पॉक्स में जो स्किन पर स्मॉल पैचेस जो जनरेट होते हैं तो ऐसे पैचेस उनकी आइज़ में होने की वजह से दे जस्ट लॉस्ट देयर विजन। तो इस हद तक इतनी सिवियरिटी होती थी। अभी तो वैक्सीनेशन की वजह से बहुत ही कम बच्चों में ये हो रहा है। स्मॉल पॉक्स से तो हम छुटकारा पा चुके हैं, पर अभी चिकन पॉक्स कई बच्चों को होता है ना। तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन मिलने के बाद वी हैव completely overcome the smallpox. And right now the campaign which is being run by our government officials and the brand ambassador of that polio campaign, right? You have often seen that Amitabh Bachchan is giving advertise for this polio vaccine, that do boond zindagi ki. All of us are aware about that, right? Because that ad is uh, often broadcasted on TV and it's available to see on mobiles. Okay, so right now our government is trying to completely overcome this disease by providing 100% vaccination to all the people. Okay, so that is how these vaccines work, and vaccine is available for various diseases. In your childhood, you must have been given injections to protect yourself against several diseases. Can you prepare the list of this disease? तो जैसे कि मैंने बताया, आप एक काम कर सकते हैं कि कहीं से अगर आपको वैक्सीनेशन कार्ड मिलता है तो आप उनको देखिए एक बार और अलग अलग कौन से डिजीज़ के लिए वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करिए। ओके, it is essential to protect all the children against these diseases. Necessary vaccines are available in nearby hospitals. You might have seen advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio. जैसे कि मैंने अभी बताया कि पोलियो कैंपेन हमारी गवर्नमेंट चला रही है, तो इनकी वजह से पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है, जो कैंपेन है, तो उनकी वजह से क्या होगा कि जो रूरल एरियाज़ है या कुछ ऐसे एरियाज़ है जहाँ वैक्सीनेशन कुछ लोग नहीं करवा पाते या उनको पता नहीं होता, तो एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये पूरा कैंपेन चल रहा है। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लेड टू इज इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। Here, word eradication means to completely destroy the virus so that not even a single case is present of this particular disease in the world. ओके, तो वर्ल्ड लेवल पे हमने इस डिजीज को इरेडिकेट ही कर दिया, पूरा ख़त्म ही कर दिया है। अब इनके एक भी पेशेंट कहीं भी नहीं पाए जाते, तो इसे हम टोटल इरेडिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से अब स्मॉल पॉक्स से तो हमने कम्प्लीटली छुटकारा पा लिया। तो बिल्कुल ऐसे ही हम अब पोलियो से पूरा छुटकारा पाना चाह रहे हैं, और इसी वजह से पोलियो कैंपेन या पल्स पोलियो प्रोग्राम जो बोलते हैं वो हमारी गवर्नमेंट अभी उनको रन कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, so that was about this medicinal use of these microbes in preparing vaccines, okay, and how vaccine works. So we learnt about that in this lecture, that medicinal use of microorganism, commercial use of microorganism, what is vaccine, how it works, what are antibodies,
and what is uh, who was the first scientist who found out that vaccine for the first time, for which disease he found. Okay, what is eradication? Okay, so these particular terms we learn about. Next point is increasing soil fertility, about which we would learn in our next video lecture. Till then, you write the question given with this video, and stay home and stay safe. I'll see you in next video lecture. Till then, stay home, stay safe. Bye bye.